Hello everybody. Today we start with entrepreneurship, fundamental of entrepreneurship, unit 1. We start with the basic and concept of entrepreneurship. Firstly, what is entrepreneur? The term entrepreneur is derived from the French verb entreprendre. Entrepreneurs are individuals who collect means of production, organize an enterprise, innovate, create new things and bear the risk. Bear the risk means वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी एक रिस्क है, और इनोवेशन वो लाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग करके वो एक इंटरप्राइज खड़ी करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर उसे कंपनी बनाते हैं. और एंटरप्राइज इज समथिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिन ruled with one person, and entrepreneur is the economy agent who unites all means of production. ठीक है, so all means of production वो unite करता है. और entrepreneur is one who always searches for change, respond to it and exploit it as an opportunity, innovation in a specific instrument of entrepreneurship. What are the key features and characteristics of entrepreneurship? Firstly, economic activity. It involves creation and operation of an enterprise. So creation करता है, operation करता है, इस something innovation चीज़ लाता है वो, और कोई एक नई कंपनी खोलता है. जस्ट लाइक व्हेन देयर आर न्यूली ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो क्या सर्च आउट करते हैं, जॉब सर्च आउट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सर्च आउट करते हैं, कंपनी जिनका पैकेज अच्छा हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो, और वो उन्हें हायर करे. तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो जॉब ढूंढता नहीं है, वो जॉब बनाता है, वो एक कंपनी क्रिएट करता है, वो एक बेस क्रिएट करता है जहाँ से काम शुरू होगा. सो इनोवेशन एक्टिविटी. शम्पीटर इज़ एन इन्वेंटर एंड इसकी थ्योरीज काफ़ी हैं एंटरप्रेन्योरशिप में. सो ही इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, ही वॉज. सो we'll discuss it further in videos. And Schumpeter has regarded innovation as a main feature of an entrepreneur. Let's move forward. Next page. Innovation is concerned with introduction to new products, adopting new technology or method, opening of new market, discovering a new source of raw material. So innovation is concerned with introduction of new products. So वो करते हैं और adopt करते हैं new technologies को, new methods को, opening and new market, discovering a new source of raw materials. So these are the some things which they do. So it also includes innovative management concepts, quality process, new methods of problem solving and decision making under certainty. Now what are the functions of now the characteristic एक ये होता है कि function of risk bearing. Calculated risk bearing is an important function of entrepreneurship. हर कंपनी काम करती है, उसमें रिस्क लेती है, तो उसको कैलकुलेट अगर करे कि कितना रिस्क बियर होगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और ये ज़रूर करना चाहिए हमेशा हर छोटे बड़े काम में. रिस्क बियरिंग इन्वॉल्व्स कंसेप्चुलाइजेशन. ठीक है, तो एक कंसेप्ट के साथ साथ होता है एन आइडिया, ट्रांसलेटिंग दैट आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट, रेजिंग फाइनेंस, बिल्डिंग अ टीम from scratch, marketing and new product decisions. So now next is function of high achievement. Involves doing things in a different and better way, decision making under uncertainty, motivating people to excel and achievement orientation. So इसमें आता है involves doing things in a different and better way. जैसे अगर एक चीज़ आ रही है मार्केट में, तो वो तो सिंपल तरीके से आ ही रही है, बट ये कुछ उसमें ऐड ऑन कर देगा फीचर कि वो एक अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, एक अलग कंपनी बन जाएगी. जैसे काफ़ी एक ही चीज़ की देयर आर सो मेनी कंपनीज एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो ये इनोवेशंस करते हैं बेसिकली. Involves doing things in a different and better way, decision making under uncertainty, motivating people to excel and achievement orientation. Now next is fifth characteristic of entrepreneur is creative. बहुत क्रिएटिव होता है इन मतलब इन फ्रॉम हार्ट एंड माइंड बोथ ऑफ देम, एंड
पर्पसली एक्टिविटी वो करता है. Involves creative response to changing environment, offering smoothing creative and new to the society, thrust on social responsible. डिसीजन मेकिंग तो ये करेक्टर हर किसी का है. मैनेजर भी करता है, टीचर भी करता है, और बच्चा भी करता है, बड़ा भी करता है. तो ये हम एक ऐसा एक पॉइंट है जो हम हर किसी फीचर, हर किसी करेक्टर में डाल सकते हैं. किसी का पूछो बस लिख दो डिसीजन मेकिंग और उसको एक्सप्लेन कर दो. जैसे इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन एज टू सिलेक्शन ऑफ साइट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब ये है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा ना वो स्लाइटली डिफ्रेंशिएट करेगा विद इन अनदर. तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, इसीलिए फोकस करते हैं और ईजी लैंग्वेज में पॉइंट्स में बताया हुआ है. इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजंस टू सिलेक्शन ऑफ साइट, कि कौन सी सिलेक्शन, कहाँ से हम बच्चे, कहाँ से लोगों को लेना है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी टू अस यूज्ड, raising of capital, expansion of business, etc. A successful entrepreneur is one who can take decisions. A successful entrepreneur is one who can take decisions. So एक होता है ना कि जब बंदा कि कुछ करने जाए कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो उसको 10 बंदों से पहले डिसीजन लेना होता है. फिर वो एक हैबिट बन जाती है डिसीजन लेने की, और फिर whenever you are going to get into something, तो वो तुम उससे किसी ना किसी से पूछोगे भाई ये ठीक है, ये मैं आगे भेज दूँ, ये मैं आगे भेज दूँ. वो जॉब वाले बंदे करते हैं, वो बॉस से पूछते हैं कि ये चेक कर लो, फिर ये आगे मतलब वो आगे का काम वो देखता है. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, पूरा काम देता है वो. ठीक है, एम्प्लॉयज़ को. नाउ 7th इज़ ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग फंक्शन. पूरा जो फंक्शन है कंपनी का वो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेजमेंट करता है. एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, ये हर जगह होता है. गैप फिलिंग फंक्शंस, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग. दीज सम फीचर्स आर ना हर किसी के कैरेक्टर होते हैं, चाहे टीचर से लेके चाहे कोई भी जॉब हो, सेल्स की जॉब हो, बच्चा भी करता है अपनी पढ़ाई के लिए, और कोई भी मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स इन विच यू कैन टेक एंड एक्सप्लेन इन देयर related information. Okay, so thank you.